بلوچستان اور سندھ کے ندی نالوں میں طغیانی دریائے بولو میں جھلمکسی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ ڈیرہ بگٹی میں کھیتوں کے لیے جمع پانی کا حفاظتی بند ٹوٹنے سے 2 افراد ڈوب کر جان بحق۔ گاش ندی سے سیلابی ریلا گاؤں کاچو میں داخل، کئی مکانات منہدم۔ سکھر ملتان موٹر وے پر تیز رفتار کوس الٹ گئی، ڈرائیور سمیت 3 افراد جان بحق، 17 زخمی۔ لوئر کوہستان شاہراہ قرکرم پر آئل ٹینکر الٹ گیا، آگ لگنے سے 2 افراد جان بحق، راہگیر زخمی۔ لیاقت پور میں قانبلہ رورل ہیلتھ سینٹر میدان جنگ بن گیا۔ تیمارداری کے لیے آنے والے افراد پر مخالفین کا حملہ، ڈنڈوں اور سوٹوں کے آزادانہ استعمال سے 6 افراد زخمی۔ گوجرانوالہ پولیس نے 4 ماہ میں اینٹ سے سر کچل کر 6 افراد کو قتل کرنے والے سیریل کلر کو گرفتار کر لیا۔ 13 سال پہلے اسی ملزم نے ایک خاتون کو قتل کیا، شواہد نہ ملنے پر عدالت نے رہا کر دیا تھا۔ اور شہر شہر گاؤں گاؤں یوم آزادی کی تیاریاں، سٹال سج گئے، شہری جھنڈیاں، بیجز، ٹوپیاں، شرٹس خریدنے میں مصروف۔ السلام علیکم، گاؤں گاؤں شہر شہر کہوالی میں ہوں آپ کے ساتھ ایمن جعفری۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ سب سے پہلے بات کریں گے پانسیلہ کی تحصیل بفا میں چوری کے الزام میں 2 افراد کو تشدد کا نشانہ بنانے والے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 2 ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گاؤں جگواڑی میں گاڑی کی بیٹری چوری کرنے کے الزام میں اہل علاقہ کا 2 شہریوں پر بدترین تشدد۔ اہل علاقہ نے شدید تشدد کے بعد دونوں شہریوں کو برہنہ کر کے گاؤں میں گھمایا۔ ملزمان نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ اس حوالے سے تفصیلات کیا ہیں جانیں گے، نمائندہ نیو ریاست خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریاست اپڈیٹ کیجئے گا، اس حوالے سے مزید کارروائی کیا کی گئی؟ جی، یہ گزشتہ رات یہ 2 بھائیوں کو نامعلوم ملزمان نے پہلے تو ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، پھر برہنہ کر کے ان کو گاؤں لے کے گئے، جہاں پر ان کو مزید تشدد کا نشانہ بنایا اور پورے گاؤں میں ان کو گھما پھرا کر ان کی بےعزتی کی، جس پر پولیس نے نوٹس لیتے ہوئے ان پر کارروائی کی اور ان کی ویڈیو بھی جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی تھی، اس کی مدد سے لوگوں کو گرفتار کیا، جن میں متاثرہ شخص نے، دونوں بھائیوں نے 6 نامزد کیا، 6 ملزمان کے نام نامزد کر دیے، جنہوں نے پولیس نے 4 افراد کو گرفتار کر کے 2 گروگوش ہو چکے ہیں اور ان کے علاوہ مزید جو ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو شناخت کی جا رہی ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر DPO مانسرا بھی پہنچ چکے ہیں، DSP شنکاری بھی پہنچ چکے ہیں، جو تفتیش کر رہے ہیں اور مختلف علاقوں میں ان کے خلاف گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور مزید تفتیش اس حوالے سے جاری ہے۔ مزید تفتیش اس حوالے سے جاری ہے۔ ریاست خان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ لیاقت پور کے علاقے قانبلہ میں رورل ہیلتھ سینٹر میدان جنگ بن گیا۔ زیر علاج مریض کی تیمارداری کے لیے پہنچنے والے افراد پر مخالفین نے حملہ کر دیا، ڈنڈوں اور سوٹوں کی آزادانہ استعمال سے 6 افراد زخمی ہو گئے۔ دونوں گروپس میں زمین کا تنازع چل رہا ہے۔ تفصیلات کہہ جانے کے نمائندہ نیو محمد معروف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ معروف، اپڈیٹ کیجئے گا، اس حوالے سے کیا کارروائی کی گئی ہے؟ ہاں جی، یہ قانبلہ رورل ہیلتھ سینٹر میدان جنگ بن گیا، جہاں ڈنڈوں اینٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ یہ جتوئی برادری کے 2 گروپ تھے، جہاں تصادم ہوا۔ جب رورل ہیلتھ سینٹر قانبلہ زیر علاج مریض کی تیمارداری کے لیے آئے تو وہاں پر مخالفین پر ان پر دھاوا بول دیا اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ جھگڑا بڑھتے بڑھتے ڈنڈوں، سوٹوں اور اینٹوں کا استعمال ہونا شروع ہو گیا اور پولیس کے پہنچنے پر یہ جھگڑا ختم ہوا۔ اس جھگڑے میں 6 افراد شدید زخمی ہوئے، ان میں سے ایک شخص بشیر احمد کو شیخ زیاد ہاسپٹل رحیم یار خان منتقل کر دی گیا۔ اس جھگڑے کی وجہ جو ہے وہ زرعی رقبے پہ قبضے کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ معروف، انور اپڈیٹ کر رہے تھے۔ گوجرانوالہ میں پنجاب حکومت کی ہیلپ لائن استعمال کر کے نوسر باسوں نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو لاکھوں روپے کا چونا لگا دیا۔ تحصیل وزیر آباد میں 100 سے زائد لیڈی ہیلتھ ورکرز کے اکاؤنٹس میں رقم عمرے کی نیت سے جمع کرواتی رہی۔ نوسر باسوں نے محکمہ صحت پنجاب کی ہیلپ لائن 1034 کو نوسر باسی کے لیے استعمال کیا۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز نے عمرے کے نام پر رقم بٹوری گئی۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز نے محکمے کی ہیلپ لائن سمجھ کر انتھا اعتماد کیا اور رقم بھیج دی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے، نمائندہ نیو شفقت عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
शफकत, बताए गए नौसरबाजों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है और लेडी हेल्थ वर्कर्स का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, लेडी हेल्थ वर्कर तो बेचारी अभी तक एहतजाजी मुजाहरा कर रही हैं, वो भी जो नौसरबाजों के खिलाफ, और FIA में इस हवाले से जो है वो बाकायदा एक एप्लीकेशन भी दायर कर दी गई है, क्योंकि ये FIA का केस है कि जिस तरह एक सरकारी वेबसाइट जो है वो उसको यूज करके नौसरबाजों ने बेसिकली इनको उम्रा कराने का झांसा दिया गया, और वो सिर्फ हुकूमती वेबसाइट की वजह से उसके झांसे में आ गई हैं और लाखों रुपए उसने उम्रे के नाम पे बटोर रही हैं। अभी सरदस्त ये है कि जो लेडी वर्कर है वो बाकायदा एहतजाज कर रही थी, उनकी दरख्वास्त लेकर जो है वो FIA में सबमिट कर दी गई है। FIA हुकाम से हमारा राब्ता हुआ है, उनका कहना है कि हम इसका बाकायदा एक मुकदमा दर्ज करेंगे और मुकदमा दर्ज करने के बाद इन मुलजमान को गिरफ्तार किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शफकत इमरान, अपडेट कर रहे थे। लाहौर पंजाब फूड अथॉरिटी की 1306 मकामात की चेकिंग, 55 सील कर दिए गए, 106 को जुर्माने किए गए। जालसाजी करने पर एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 13 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद है। 76 फूड पॉइंट से सैंपल्स लेबॉर्ट्री तज्जिए के लिए हासिल कर लिए गए हैं। मोबाइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज ने 23 मिल्क शॉप्स, 253 दूध बरदार गाड़ियों में से 2,39,362 लीटर दूध चेक किया। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में ये कार्रवाइयां की गई, जिसमें 55 इलाके सील किए गए, जबकि 106 को जुर्माने किए गए। सिंध के बाद बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। दरिया पौला में डेरा बुगती और झलमक्सी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बंद टूटने से सैलाबी पानी गोट शरबत खान, लाशारी और खुदाबख्श रिंद में दाखिल हो गया। 2 अफराद सैलाबी एरिया में डूबकर जाँ बहक हुए। दरिया नाड़ी में 25,000 क्यूसेक करेला गुजरने से फसलों और इमलाक को नुकसान पहुंचा। गाज नदी से सैलाबी रेला गांव काछू में दाखिल हो गया। मकान मुनहदिम हो गए, माल मवेशी भी बह गए। सीबी में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, पानी घरों में दाखिल हो गया। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, नदी नाले बिखर गए। दरिया मौला में ऊंचे दर्जे का सैलाब, बड़े पैमाने पर फसलों और इमलाक को नुकसान पहुंचा। डेरा बुगती में सैलाबी सूरत हाल, हिफाजती बंद टूटने से 2 अफराद सैलाबी रेले में डूब गए। दरिया नाड़ी में हिदवान के मुकाम पर 25,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला। दरिया मौला में ऊंचे दर्जे का सैलाब, झलमक्सी के मुताबिक देहात डूब गए, सामान और माल मवेशी बह गए। देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सिद्दी की तली नदी में पानी का बहाव बढ़ गया। 15 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। शहर में भी हर तरफ पानी ही पानी। फीडर स्ट्रिप होने से बिजली गायब। बसनी सिटी समेत दीगर नशेबी इलाके ज़ेरे आब, देही आबादियों को जमीनी राब्ता मुनक़ता। लिविस हुकाम के मुताबिक मकरान कोस्टल हाईवे का 1 किलोमीटर हिस्सा पानी में बह गया। गवादर के साहिली इलाके और माड़ा में भी बड़े पैमाने पर नुकसान। माहीगीरों के घर तबाह, कश्तियों को भी नुकसान। तिलहार में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। कोहलो शहर मूसलाधार बारिश को लोहो सिटी शाहरा पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लिविस की इमदादी टीमें रवाना कर दी गयी। सिंध में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। दांदू की गाज नदी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। पानी कई देहात में दाखिल हो गया। मीरपुर खास घोट की पनुआकिल और जैकबाबाद में गटरों का पानी सड़कों पर आ गया। ज़िला इंतजामी की कारकर्दगी का पोल खुल गया। पानी घरों में दाखिल हो गया। लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। मानसून की बारिशें बाइसे ज़हमत बन गईं। अंदरूने सिंध के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। दादू के पहाड़ी सिलसिले में सैलाबी सूरत हाल। गाज नदी से सैलाबी रेला 10 से जायद गाँव में दाखिल। कच्चे मकानात मुनहदिम, जबकि माल मवेशी भी बह गए। मीरपुर खास में गटर उबल पड़े। पानी सड़कों पर आ गया। शहरी घरों में महसूर होने पर मजबूर। घोट की पानी में डूब गया। इंतजामिया गायब, शहरी परेशान। आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। पन्नुआकिल सरकारी महकमों की कारकर्दगी का पोल खुल गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जैकबाबाद में नालों की सफाई न होने से
गंदा पानी भी सड़कों पर आ गया। रही सही कसर तवील लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। शहरी सरापा एहतजाज बन गए। थरपारकर में 2 रोज की शदीद गर्मी के बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। थर पे बारिश से खेती बाड़ी और मवेशियों को चारा मुयस्सर होगा। मजीद अहवाल मरियम सिद्दीका से। शदीद गर्मी पड़ने के बाद 3 दिन के बाद जो है थरपारकर के अंदर दूर दराज इलाकों में तो बरसातें होती रही है, मगर इस वक्त मिट्टी शहर में जो है तेज बरसात भी हुई है और इस वक्त भी हल्की हल्की फुहार चल रही है, जिससे मौसम बहुत खुशगवार हो चुका है। और हल्की हल्की हवा चलने से जो गर्मी का जोर था 3 दिन से, जो लोग मुसलसल गर्मी के बाद परेशान थे, उनमें जो है खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि इस वक्त अच्छी सी बरसात चल रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह दरख्त भी खुशी से झूल रहे हैं। इसी तरह थरपारकर के बासियों की भी यही हालत है कि जब बरसात होती है तो यहाँ पर तमाम लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो दारोमदार है जिंदगी का वो बरसातों पर ही होता है। चाहे ज़राअत हो, चाहे मवेशी हो, चाहे इंसान चंदपन, तमाम के तमाम जो है यहाँ पे बरसातों पर डिपेंड करते हैं। और इस वक्त जो ये बरसात हुई है तो यकीनन एक खुशी की ये नवीद है, क्योंकि इससे पहले जो भी बरसातें हुई है अब तक थरपारकर में मवेशियों के लिए ना ही चारा मुयस्सर हो सका है, ना ही दूसरी जानिब जो है खेती बाड़ी के लिए भी कोई बेहतरीन बरसात नहीं हुई है। जो अभी आज जो बरसात हो रही है, अगर ये मुसलसल इस तरह चलती रहती है और इसी तरह बरसात का जो दौरानिया है वो चलता रहे और इसी रफ्तार से चलती रहे, तो हो सकता है कि बेहतरीन जो है काश्तकारी भी की जा सके और जो फसलें वगैरह जो है वो भी हो सके और मवेशियों के लिए चारा भी हो सके। मीरपुर खास जिला में जारी बारिशों के बाद की सूरत हाल शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनी हुई है। सीवरेज का भी कोई निज़ाम बेहतर नहीं है। मीरपुर खास की मौजूदा सूरत हाल क्या है, इस हवाले से अपडेट करेंगे बिलाल महमूद। जी बिल्कुल, मीरपुर खास जिले में जारी अब्र रहमत शहरियों के लिए जो है वो फिल वक्त जहमत बनी हुई है। कुछ रोज़ कबल वज़ीर आला सिंध की जानिब से मीरपुर खास का दौरा किया गया था। इन्हीं बारिशों के पेश नज़र जो है वो मीरपुर खास में वज़ीर आला सिंध ने दौरा किया था। इंतज़ामिया को, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को सख्त हिदायत जारी की थी कि बारिशों के पेश नज़र जो है वो पहले से इंतजाम किए जाएँ। उसके अलावा जो है वो अफसरान बारिश के मौके के ऊपर सड़कों पर जो है वो काम करते हुए नजर आए। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त मीरपुर खास शहर में मौजूदा बारिशों के पेश नज़र जो है वो इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन इस वक्त भी जो मीरपुर खास की मैं चाह रहा हूँ जिनमें पोस्ट ऑफिस चौक हो गया, इसके अलावा दीगर सड़कें हो गई, वहाँ पर जो बारिश का पानी मौजूद है। और साथ ही जो वो गली मोहल्लों के अंदर भी जो बारिश का पानी और इसके अलावा सीवरेज का पानी मौजूद होने से शहरी जो सख्त अजियत के अंदर जो मुब्तला है। शहरियों से जब हमारी बात हुई, शहरियों का यही कहना है कि इंतजामिया की जानिब से जो है वो दावे तो किए गए बारिश होने से कबल के बारिश के पानी की निकासी को जो है वो मुमकिन बना लिया जाएगा, लेकिन अब तक जो गली मोहल्लों के अंदर पानी मौजूद होने से जो है उनको सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी हवाले से जब हमारी असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन कानियो, इसके अलावा सीएमओ राजकुमार से बात हुई, उनका ये कहना है कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के ऊपर जो है वो इस वक्त वो मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशन का जो है वो दौरा कर रहे हैं और दौरा करके जो है वो हर पंपिंग स्टेशन के साथ एक मशीन को जो है वो फिक्स कर दिया है, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से ज़्यादा मशीनें जो वो नहीं लगाई गई हैं, लेकिन हर पंपिंग स्टेशन के साथ एक मशीन को जो है वो लगा दिया गया है और शहर से जो बारिश का पानी उसकी जो है वो निकासी को मुमकिन बनाया जा रहा है। जबकि शहरियों की जानिब से जो है वो मुतालबा किया जा रहा है कि ये बारिश के पानी को जल्द से जल्द जो है वो शहर से क्लियर किया जाए और अगर मजीद बारिशें होती हैं तो उसके लिए भी जो है वो पहले से इंतजाम किए जाए ताकि शहरी जो है वो मुश्किलात से बच सकें। जी दूसरी जानिब पनुआकल में होने वाली बारिश ने टाउन कमेटी इंतजामिया और महकमा पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश के बाद शहर की सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मजीद तफसीलात अली रजा से। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने पनुआकल टाउन कमेटी इंतजामिया और महकमा पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। बारिश के बाद से शहर की सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उसके अलावा शहर की गलियों और मोहल्लों में भी बारिश का पानी जमा होने की वजह से शहरी शदीद दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। और इसके अलावा बारिश से कबल शहर की सफाई और उसके अलावा शहर के गटर और नालियों की सफाई न कराने की वजह से बारिश के बाद शहर की नाली और गटर भर जाने की वजह से उन गटर और नालियों का पानी भी शहर की सड़कों और गलियों पर आ गया है। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। पनुआकल में कल होने वाली बरसात के बायस जो दरअसल 10 या 15 मिनट बरसात हुई थी, उसके बायस ये देख सकते हैं आपके गटर नालियों का पानी इतना जमा हो चुका है जितना बरसात का पानी नहीं हुआ है। यहाँ के टाउन कमेटी वालों से गुजारिश है, हेल्थ वालों से गुजारिश है कि आप आएं और आके विजिट करें। आप वहाँ पे बैठे हुए तमाशा देखते हैं, सिर्फ आगे देखें कि पानी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी इन शहरियों का कहना है कि बरसात के बाद शहर की सड़कों और गलियों में बारिश और नालियों का पानी जमा होने की वजह से हमें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने अरबाब अख्तार से मुतालबा किया है कि
जल्द अज जल्द शहर से की सड़कों और गलियों में जमा बारिश का पानी निकलवाकर हमारी मुश्किलात दूर की जाएं। जी पनवाकिल में मुबारकपुर बाइंस नहर को 2 मकामात पर शगाफ पड़ गए। RT-19 के मुकाम पर 60 फीट, जबकि मुबारकपुर नहर को ही RT-45 के मुकाम पर 40 फीट शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ फसलें और देहात ज़ेरे आब आ गए। महकमा आबाशी के अमलदारान को इत्तला के बनने के बावजूद कोई नहीं पहुंचा। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत शगाफ भर रहे हैं। बलूचिस्तान के मौके इलाकों में गुज़श्ता रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि सिबिया के करीब तूफानी बारिशों के बाद तली नदी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तली नदी में 25,000 क्यूसेक की सैलाबी रेला गुजर रहा है। तली गांव में बारिश का पानी दाखिल हो चुका। मजीद इस हवाले से तफसीलात रमेश कुमार से। अगर बात करें गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिशों के हवाले से, तो मैं इस वक्त तली नदी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ से शुरू होने वाली बारिशों के बायस जो कि इस वक्त कोई 27,000 क्यूसेक के करीब से जो कि सैलाबी रेला नदी से गुजर रहा है। जबकि ये भी आपको बताता चलूँ, इस नदी में गुजरने वाले सैलाबी रेले के बायस काफ़ी जो कि लोगों के घरों में पानी भी दाखिल हो गया है। और इसके अलावा ये भी आपको बताता चलूं, जो कि इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद जो कि ज़िला इंतज़ामिया के जानिब से जो शहरी या जो लोग अपने घरों में फंस गए हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए जो कि टीमों को भी रवाना कर दिया गया है। और इसके अलावा ये भी आपको बताता चलूं, इन बारिशों के बायस जो कि 15 से ज़ायद देहातों का राब्ता जो कि शहर से मुंतका हो चुका है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ, बारिश की वजह से जो कि गुज़श्ता रोज़ से जो शुरू हुई हैं, हरनाई में जो बारिशें हुई हैं, वहाँ पर डैम ना होने की वजह से, जिसके बाद जो कि ये सैलाबी रेला जिसने सिब्बी दरिया नाड़ी और जो कि तली नदी का रुख कर लिया, बारिश के बायस जो शहर में जो हुई है, उसके बाद जो मुस्बल कमेटी इंतजामिया की जानिब से उस पानी को निकालने के लिए रेस्क्यू का अमल भी शुरू कर दिया गया है। जिसके बाद जो शहरी अपने घरों में महफूज होकर रह गए थे, वो उन्होंने अभी आस्ता आस्ता अपने घरों से निकलने का भी सिलसिला शुरू कर दिया है। जी आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, फैसलाबाद में गैर-एलानी लोड शेडिंग का दौरान बढ़ा दिया गया है। लोड शेडिंग की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी इलाकों में 8 जबकि देही इलाकों में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मजीद तफसीलात शौकत वटू से। हाँ जी बिल्कुल, गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग के दुरानिये में भी इजाफा हो गया है। शहर में जो है वो 8 से 10 जबकि देहातों में जो है वो 10 से 12 घंटे गैर-एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों की कारोबारी ज़िंदगी मुतासर हो रही है, जबकि घरेलू ज़िंदगी भी मुतासर हो रही है। इसके साथ साथ बार बार जो है वो ट्रिपिंग की वजह से लोगों की कीमती इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल एशिया जो है वो जल जाती हैं, जिसकी वजह से आवाम को भारी माली नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि उनका लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा। सर आजकल जो है वो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, दौरानिया भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। हुकूमत ने दावे तो बहुत किए थे पहले कि जी लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे, लेकिन दावे धरे के धरे रह गए हैं। लोड शेडिंग ज़्यादा पहले से ज़्यादा होनी शुरू हो गई है और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से बार बार ट्रिपिंग की वजह से लोगों की कीमती अशिया भी जल रही हैं, लोगों का दफ्तर का नुकसान हो रहा है, घरों में नुकसान हो रहा है। तो ये हुकूमत को चाहिए कि इस पर गौर करे और लोड शेडिंग को कम करे। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने लोड शेडिंग को ख़त्म करने के दावे तो बहुत किए थे, लेकिन वो दावे धरे के धरे रह गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करे ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। जी स्कर्दू में कोरोना वायरस पे काबू होने लगा है। गिलगित बल्तिस्तान में जिला स्कर्दू पहले नंबर पर आ गया। जानलेवा वायरस ने अब तक 10 अफराद की जान ले ली। 87 अफराद ज़ेरे इलाज हैं। डॉक्टर्स का कहना है अगर सूरत हाल कंट्रोल ना हुई तो मरीजों के लिए बेड कम पड़ जाएंगे। मजीद अहवाल इकबाल अली से। स्कर्दू में कोरोना वायरस बेकाबू, निजी अस्पतालों में 87 मरीज जेरे इलाज, 15 से जायद ऑक्सीजन पर। निजी अस्पताल के MS डॉक्टर आसिफ रजा कहते हैं यही सूरत हाल रही तो मरीजों के लिए बेड्स कम पड़ जाएंगे। NDMA की जानिब से RHQ स्कर्दू को दी गई
2 टेस्टिंग मशीनें भी 2 माह गुजर जाने के बावजूद भी फंक्शनल न हो सकी। शहरियों ने गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ने का जिम्मेदार हुकूमती सतह पर नाकिस इंतजामात और महकमा सेहत की गफलत को ठहराया। वफाक ने बिल्कुल भी ताउन नहीं किया, इसी वजह से आज गिलगित बल्तिस्तान में पेंडेमिक ये जो कोविड-19 का सिचुएशन है इंतहाई गंभीर होता हो गया है और साथ ही साथ यहाँ ज़िली इंतज़ामिया का भी यहाँ पे इसमें कसूर है। उन्होंने वक्त से पहले लॉकडाउन जिस तरह शुरू में चलाया गया था उस हिसाब से इसको कंटिन्यू नहीं रखा। स्कर्दू में वबा की बिगड़ती सूरत हाल पर आवाम में बेचैनी और खौफ फैल रहा है। मरीज हुकूमत से बेहतर इंतजामात के मुंतजिर हैं। कोरोना वायरस की सूरत हाल पर वफाकी सतह पर बल्तिस्तान रीजन को यकसर नजरअंदाज करना लम्हे फिक्रिय है। अब भी वक्त है कि वफाकी सतह पर NDMA के थ्रू बल्तिस्तान रीजन के लिए इमरजेंसी बेस पे इकदाम करे ताकि जल्दी ही इस कोरोना वायरस पे काबू पाया जा सके। इकबाल अली, इकबाल, नियो न्यूज़, सिकरदू, बल्तिस्तान। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब अफराद की शरह में इजाफा हुआ है। हुकूमत की जानिब से पाबंदियों में नरमी के बाद कारोबारी मराकिज भी खोल दिए गए हैं। मजीद तफसीलात इस्मत अमान से। आज ही बिल्कुल कोयटा समेत बलूचिस्तान भर से कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोयटा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से मजीद 14 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ज़्यादातर केसेस जो सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा से रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 26 से जो 27 अजला में कोई केसेस जो है तकरीबन 1.5 हफ्ते से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुई है। केसेस में सूबाई हुकूमत के मुताबिक जो है कमी का सिलसिला जारी है। तो वहीं पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कोयटा में खासकर जो SOP जो जारी किए गए थे सूबाई हुकूमत की जानिब से, इन पर जो है अब आहिस्ता आहिस्ता अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता। यहाँ पर जो ताजिर बिरादरी इनकी जानिब से सिर्फ जो शहरी इलाके यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद किया जाता था, कार्रवाई की जाती थी सूबाई कोयटा इंतजामिया की जानिब से, लेकिन अब हम देख रहे हैं ना ही कोयटा इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से कार्रवाई की जाती है और ना ही जो है यहाँ पर ताजिर बिरादरी SOPs का ख्याल रख रहे हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर ट्रांसपोर्टर हजरात भी जो SOPs का खास ख्याल नहीं रख रहे, जो उनके लिए SOPs जारी किए गए थे एक सीट छोड़कर एक सीट पे जो है एक शख्स को बिठाने का। अब वहाँ पर भी हम देख रहे हैं लोग जो है अज़्ब मामूल जैसे पहले जैसे हजूम की सूरत में लोगों को जो है लोकल बसों में बिठाया जाता था, अब दोबारा जो है इसी तरह लोगों को बसों के अंदर जो है बिठाया जा रहा है। दूसरी जानिब यहाँ पर जो शहरी है इनकी जानिब से भी जो है अब जब से सूबाई हुकूमत की जानिब से जो है ये ऐलान किया गया कि केसेस में कमी का सिलसिला शुरू हो गया, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर शहरियों की जानिब से भी जो है अब ख़ास यहाँ पर एहतियात करते दिखाई नहीं देते शहरी। पहले यहाँ पर हम देखते थे शहरी जो है मास्क पहनते दिखाई देते थे, ग्लव्स पहनते दिखाई देते थे, इज्तिमात से जो है गुरेज करते थे, लेकिन हम देख रहे हैं अब शहरियों की जानिब से भी जो है यहाँ पर अब एहतियात करना कम हो गया है। यहाँ पर शहरी जो है मास्क नहीं पहनते, हाथों में ग्लव्स नहीं पहनते। माहिरीन यही कह रहे हैं कि अब जो केसेस में जो कमी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो शहरियों की बेहतियाती है, ट्रांसपोर्टर हज़रात की जानिब से बेहतियाती है और जो ताजिर बिरादरी की जानिब से बेहतियाती है, अब केसेस में दोबारा इजाफे का खदशा भी है। जी, इस्लामाबाद में तवील पाबंदी के बाद हफ्ते के रोज मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खुल गए। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से शहरी इक़्तिदार में तमाम शॉपिंग मॉल्स और बाजार पूरा हफ्ता 24 घंटे खुला रखने का फैसला किया गया है। दुकानदारों ने फैसले को खुश आइन करार दिया। मजीद तफसीलात आप पारा से हमारी नुमाइंदा जरमीन साहरा बताएंगी। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में हफ्ते और इतवार को तमाम बाजार, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स खोलने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। NCOC के फैसलों की रोशनी में ज़िला इंतजामिया ने कल ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत हफ्ते में 7 रोज़ 24 घंटे तमाम मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और तामीराती कारोबार से मुतल्लिक जो भी दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, क्योंकि पहले जो है इसके औकात कार तय किए गए थे। शाम 7 बजे तक तमाम दुकानें बंद कर दी जाती थी और हफ्ते और इतवार को भी दुकानें बंद रखी जाती थी। तकरीबन 4.5 महीने तक ऐसा चलता रहा और बीच में 2 ईदें भी गुजर गई, लेकिन ये दुकानें हफ्ते इतवार को बंद रहती थी। आज हफ्ते का रोज है और आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ आपारा मार्केट में और इस वक्त तमाम दुकानें जो हैं वो इस वक्त खुली हुई हैं। शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। कारोबारी अफराद जो हैं, दुकानदार, उनका ये कहना है कि ये फैसला बहुत अच्छा है, खुश आइन करार दे रहे हैं वो इस फैसले को। इनका कहना है कि जब दुकानें बंद होती थी तो हमारा कारोबार जो था बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचा था, हमारा कारोबार बहुत पीछे चला गया था। अब जो है दुकानें खुलने से और दोबारा हमारा कारोबार बहाल होने से जो है हमें मईशत का पहिया भी चलेगा और हमारे कारोबार